I hope I am audible to you. I hope I am audible to you. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible. Good evening to all. So we were discussing about the PATE paper from North Maharashtra University, and this is a Super 30 MCQ series, and it is a last lecture of this paper. Today we'll finish this paper. So we are discussing the MCQs from pre-PhD coursework examination question bank from North Maharashtra University, Jadhav. Out of that, we have almost completed our 220 questions, I think. So I will directly go to the 220 questions. Right. So this was our last question. What is the bioequivalence? We'll try to finish today whole question paper. This was our last question from this paper, and last question was what is bioequivalence? Question क्या था? What is bioequivalence? So as the name indicate, we already seen this question, but I would like to explain you what do you mean by bioequivalence. देखो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज बायो इक्विवेलेंस. बायो मतलब क्या है? बायो इज टर्म फॉर बायो अवेलेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस मीन्स इक्वल. As the name indicate, so if two formulations they have same bioavailability, same rate and extent of bioavailability, these two formulations they are known as a bioequivalent formulation. So here the option D was the correct answer, I think. So two drug reaches to systemic circulation at the same rate of two or more identical formulations. This was the answer. Okay, was the answer. Now for today we'll start from question number 221. देखो 256 questions are there. As we'll try to complete it. So what is the question over here? You can see what is the chromophore in the context of UV visible spectroscopy. तो देखो क्वेश्चन पूछा है UV visible spectroscopy में chromophore क्या होता है, right? So what is the chromophore in context of UV visible spectroscopy? So what is a chromophore? Chromo means color and phore means a group. Chromo means color and phore means group. A group responsible for the color means. Okay. So what is the chromophore in the context of UV visible spectroscopy? Option A देखो क्या है? Molecules that absorb the light in UV visible region. Option B है a molecule that emit light in UV visible region. Option C दिया है a molecule that reflect light in UV visible region. Option D दिया है a molecule that does not interact with the light UV visible region. Obviously it is nothing but the molecule that absorb light in a UV visible region, right? So the correct answer for this question is nothing but the option A. Chromophore means क्या? Group of a molecule or group that absorb the UV visible region. So UV visible region है ना, in that UV visible region
मॉलिक्यूल्स अंडरगो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना, तो फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विल गो टू द हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, दैट इज एक्साइटेशन. बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन. ठीक है, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे. नॉर्मली यूवी का रेंज क्या होता है, व्हाट इज द यूवी वेवलेंथ रेंज 200 to 400, and what is visible 400 to 800. Below 200, that is 190, is known as a, below 190 is known as a vacuum UV. You have to remember. यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन और कवर किए, right? So below 190 is a vacuum, 200 to 400 is visible, and 400 to 800 is a 200 to below 190 is a vacuum, 200 to 400 is a UV, and 400 to 800 is a visible, right? And a UV, in the UV we used to determine the conjugation double bonds, so it is related with the electronic excitation. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स. चलो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट द, तो यू हैव टू ट्राई इन द कमेंट बॉक्स. आपका कमेंट बॉक्स आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में. चलो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 222, right? Question number 222. So which substance listed, and which of the substance listed is used as a mucoadhesive? Which, and one of the substance listed is used as a mucoadhesive. जो ऑप्शन है तो उसमें से एक सब्सटेंस क्या है, म्यूकोअधेसिव है. वो कौन सा है? वन ऑफ द सब्सटेंस लिस्टेड इज यूज्ड एज अ म्यूकोअधेसिव. ऑप्शन ए में दिया है अकेशिया, ऑप्शन बी में दिया है सोडियम CMC मतलब सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज, ऑप्शन सी में दिया है बर्न्ट शुगर, ऑप्शन डी में दिया है सैकरिन. तो यू ट्राई द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आई विल करेक्ट इफ यू आर रॉन्ग. आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में. अगर आप रॉन्ग हो तो मैं आपको करेक्ट करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, देखो पूछा है म्यूकोअधेसिव. म्यूको मतलब क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूको मतलब क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन. अधेसिव मतलब क्या, will adhesive means it will stick to the mucous membrane. Which substance will stick to the mucous membrane? ऑप्शन ए में दिया है अकेशिया, ये क्या है, गम अकेशिया. तो ऑप्शन बी में दिया है सोडियम CMC, ऑप्शन सी में दिया है बर्न्ट शुगर, डी में दिया है सैकरिन. सैकरिन क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो इसका तो ऑप्शन गया. बर्न्ट शुगर भी इसमें इसका कोई रोल नहीं. ऑप्शन ए और बी में आपको कंफ्यूज हो सकता है, अकेशिया है या फिर सोडियम CMC है. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट द सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज. तो द करेक्ट आंसर इज अ सोडियम C. तो सोडियम CMC इज यूज्ड एज अ म्यूकोअधेसिव. सोडियम CMC इज यूज्ड एज अ म्यूकोअधेसिव. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, पहला वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर GPAT नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर एंड अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 223. देखो नया क्वेश्चन है, द जेनरिक अप्रूवल प्रोसेस इज कॉल्ड एज. क्या पूछा है, देखो पूछता है जेनरिक अप्रूवल प्रोसेस इज कॉल्ड एज. जेनरिक अप्रूवल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया है देखो NDA मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ऑप्शन बी में दिया है INDA है ना, मतलब इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ऑप्शन सी में दिया है ANDA अंडा मतलब एब्रिवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ द अबव. तो यू हैव टू ट्राई इन द आंसर. ठीक है, गुड इवनिंग अनूप प्रजापति, गुड इवनिंग. कोई भी नहीं है सर, जाने तो कोई भी नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है, अपने को अपना अपना काम करना है बस. जिसको पसंद आया वो रहेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो चला जाएगा, है ना. यहाँ पे मैंने मेरे कौन से भी वीडियो में मैंने ये नहीं बोला है कि फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मुझे नहीं करवाना है सब्सक्राइब. जिसको लगता है कि ये यूजफुल है वो आएगा, जिसको नहीं लगता वो बाहर में जाए. जेनरिक अप्रूवल प्रोसेस इज नोन एज अ, ऑप्शन ए दिया है NDA, ऑप्शन बी INDA, ऑप्शन सी में दिया है ANDA, ऑप्शन डी में दिया है नन ऑफ द अबव. जेनरिक अप्रूवल मतलब क्या है, जेनेरिक अप्रूवल. देखो जेनरिक अप्रूवल कब होता है, जेनेरिक कब आता है, जब पेटेंट एक्सपायर होता है, व्हेन देयर इज एक्सपायरेशन ऑफ योर पेटेंट. पेटेंट जो है आपका वो जब एक्सपायर होगा तो आपका जेनरिक आएगा. ठीक है,
तो पेटेंट अप्लाई करने के लिए न्यू ड्रग एप्लीकेशन लगता है और पेटेंट के लिए ही इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन लगता है। ये दोनों ऑप्शन किसके लिए लगता है? टू फाइल द पेटेंट। बट abbreviated new drug application ANDA, so that is application to the FDA, that is application to the FDA filed to get a generic approval. तो जो ऑप्शन सी है आपका, तो इट इज द करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है? abbreviated new drug application. Generic approval process is called as a abbreviated new drug application, that is a ANDA, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर है कोई तो बताएगा, नहीं तो जाने दो, ठीक है। मुझे लेना था, मैंने ले लिया ना। क्वेश्चन नंबर 224, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, है ना, all of the following serve as a intracellular second messenger in a receptor mediated signal transduction except। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है GPAT नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एग्जाम। क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब सर्व एज ए इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर। मतलब सिंपली इसका मतलब ये है कि फॉलोइंग जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर्स है रिसेप्टर के लिए, एक्सेप्ट, है ना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब सर्व एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर इन रिसेप्टर मीडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्सेप्ट। देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है? साइक्लिक AMP। ऑप्शन बी में दिया है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट मतलब IP3। ऑप्शन सी में दिया है डाई असाइल ग्लिसरॉल। ऑप्शन डी में दिया है G प्रोटीन। देखो, है ना, तो ऑप्शन में से सेकेंडरी मैसेंजर कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर? तो ऑब्वियसली साइक्लिक AMP इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट इज सेकेंडरी मैसेंजर, diacyl glycerol is a secondary messenger, but G protein is not a messenger, है ना। तो यहाँ पे G protein क्या है? It is not a messenger. So what will be the correct answer over here? Correct answer will be that G protein. So option A, B and C, they are the secondary messengers for the receptor transduction process, but G protein is not. G protein is a kind of receptor is there. Now चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन ट्राई इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप कमेंट बॉक्स में ट्राई करो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार AC पेपर में आ चुका है, मतलब रिपीटेड है ये क्वेश्चन। इसकी जैसे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 225, ठीक है। देखो पूछा है विच फंक्शनल ग्रुप इन द ग्लाइकोसाइड्स रिएक्ट विद द एसिड टू रिलीज द हाइड्रोजन साइनाइड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस। क्या पूछा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ग्लाइकोसाइड में, विच फंक्शनल ग्रुप ऑफ ग्लाइकोसाइड रिएक्ट विद द एसिड टू रिलीज द HCN ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोजन साइनाइड कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड कौन सा होता है? वही अपना साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड होता है। तो विच फंक्शनल ग्रुप इन द ग्लाइकोसाइड रिएक्ट द एसिड टू रिलीज द हाइड्रोजन साइनाइड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस, ठीक है। देखो ऑप्शन ए दिया है कार्बोनिल ग्रुप, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन सी दिया है ईस्टर ग्रुप एंड ऑप्शन डी दिया है नाइट्राइल ग्रुप। देखो इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो आपको हाइड्रोजन साइनाइड दे सकता है? कार्बोनिल ग्रुप का तो साइनाइड का कोई संबंध नहीं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में भी साइनाइड का संबंध नहीं, ईस्टर में भी नहीं, बट नाइट्राइल ग्रुप मतलब क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्राइल ग्रुप मतलब क्या है? N ट्रिपल बॉन्ड, so HCN will be given by this N triple bond, so nitrile group, right? तो आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन डी, दैट इज अ नाइट्राइल ग्रुप। तो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप इन द ग्लाइकोसाइड रिएक्ट विद द एसिड टू रिलीज द हाइड्रोजन साइनाइड ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस। और जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, जैसे आपका है ना मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड में क्या है? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है। तो नाइट्राइल ग्रुप विल
react with the acid to release the SCN in the glycoside. Okay, that is the correct answer. So you can try in the comment box. आप comment box में answer try कर सकते हो. And if you are wrong, I will correct. If you are correct, then I will mention your name. चलो next question देख लो. Question number 226. Again ये important question है regulatory affair में से, और आ सकता है क्वेश्चन GPAT नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए. अभी जो अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर है उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है. वेयर देर इज अ सीक्रेटेड, है ना, सीक्रेटेड ट्रेट और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड. मतलब क्या कि वेयर इज द सीक्रेटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड. मतलब OECD का सीक्रेटेड कहाँ पे है? OECD शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं OECD. तो OECD गाइडलाइंस होता है ना टॉक्सिसिटी स्टडीज के लिए, तो OECD गाइडलाइंस फॉर टॉक्सिसिटी स्टडीज. तो वेयर इज द सीक्रेटेड मतलब कहाँ पे ऑफिस है, इसका लोकेशन कहाँ पे, ऑफिस का लोकेशन. वेयर इज द ऑफिस ऑफ OECD लोकेटेड. ऑप्शन ए में दिया है टोक्यो जापान, ऑप्शन बी में दिया है फ्रांस पेरिस, ऑप्शन सी में दिया है UK लंदन, ऑप्शन डी में दिया है न्यूयॉर्क USA. तो OECD गाइडलाइंस और द सेक्रेटरीट और द ऑफिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट दैट इज लोकेटेड इन द फ्रांस पेरिस. ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, याद रखना है आपको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो समझ में आएगा आपको, इजीली आप आंसर कर सकते हो. इम्पोर्टेंट है. और जो टू इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 227 क्या पूछा है. देखो साइक्लिक ओलिगोमर, साइक्लिक ओलिगोमर ऑफ ग्लूकोज that form a water soluble inclusion complexes which are biocompatible and improve the bioavailability of drug. ऐसा कौन सा साइक्लिक ओलिगोमर है ग्लूकोज का that will form a water soluble inclusion complexes and which are biocompatible and improve the bioavailability of drugs. तो bioavailability enhancement के लिए there is a one glucose oligomer which is water soluble and biocompatible which will increase the bioavailability. तो ऑप्शन देखो क्या है. ऑप्शन ए इज क्लोरोफिल, ऑप्शन बी इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन सी दिया है क्रॉसपोविडोन, ऑप्शन डी दिया है साइक्लोडेक्स्ट्रिन. तो यू कैन एलिमिनेट द आंसर. कैसे एलिमिनेट करना है देखो, पूछा क्या है कि साइक्लिक ओलिगोमर ऑफ ग्लूकोज, ये तीनों में ही आपका आंसर मिल जाएगा. साइक्लिक ओलिगोमर ऑफ ग्लूकोज आपने अगर पढ़ा भी नहीं है स्टिल आप यहाँ पे आंसर ढूंढ सकते हो. कैसे? साइक्लिक ओलिगोमर, आपको ये टर्म मालूम है. ओलिगोमर मतलब क्या है? ओलिगोमर है ना, आपने ये टर्म सुना होगा, मोनोमर, देन ओलिगोमर एंड तीसरा एक टर्म होता है पॉलीमर. मोनोमर मतलब क्या है? कंटेनिंग सिंगल यूनिट. ओलिगोमर मतलब क्या है? कंटेनिंग फ्यू यूनिट. एंड पॉलीमर मतलब क्या है? कंटेनिंग मेनी यूनिट्स, है ना. ओलिगोमर मतलब 2 to 10 है ना, 3 to 10 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल. ठीक है, तो क्लोरोफिल में ग्लूकोज का क्या संबंध है? ग्लूकोज का क्लोरोफिल का कोई लेना देना है नहीं. ये ऑप्शन का है. पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल और ग्लूकोज का क्या संबंध है? कुछ भी नहीं. ये भी ऑप्शन का है. क्रॉसपोविडोन में भी ग्लूकोज थोड़ी है. ये भी ऑप्शन का है. तो आपको अगर के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है स्टिल यू कैन आंसर. तीनों ऑप्शन का है ना आपकी. बचा क्या? साइक्लोडेक्स्ट्रिन. और देखो नाम में रखा है, आप बोलते हो नाम में क्या रखा है ना, तो नाम में देखा है साइक्लो. आप देखो ना नाम में क्या रखा है? साइक्लो. यहाँ पे क्या है? साइक्लिक बोला है, साइक्लिक. यहाँ पे साइक्लो है ना भाई, यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज. ग्लूकोज को ही डेक्स्ट्रीन बोलते हैं. ग्लूकोज का रिलेटेड टर्म है डेक्स्ट्रीन. तो आंसर इज साइक्लोडेक्स्ट्रीन. आंसर इज साइक्लोडेक्स्ट्रीन ओवर हियर. साइक्लोडेक्स्ट्रीन. ठीक है, चलो करेक्ट है आपका. अभी पवार यू आर करेक्ट. अभी पवार यू आर करेक्ट.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी पॉवर आप बोलो इसमें क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द कवेट्स ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जीपैट नाइपर में ऑलरेडी आ चुका है, और ये तो पेट का पेपर है, लेकिन जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, कि आजकल फार्मासिस्ट एग्जाम में भी बी फार्म के लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि फार्मासिस्ट एग्जाम सिर्फ डिप्लोमा फार्मेसी के बेसिस के ऊपर होता है, तो सिर्फ डिप्लोमा के क्वेश्चन पूछेंगे। नाउअडेज वो थोड़ा सा बी फार्म लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 228। देखो, व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कवेट्स फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी में जो सैंपलिंग सेल होता है, सैंपल होल्डर होता है, सैंपलिंग सेल, उसको बोलते हैं कवेट्स, राइट, उसको बोलते हैं कवेट्स। सैंपलिंग सेल इन द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर known as a कवेट्स। Now what is the material from which कवेट्स are made? Material from which कवेट्स are made? कवेट्स कैसे बनते हैं? ऑप्शन ए में दिया है ग्लास, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी दिया है क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी दिया है पॉलीस्टाइरीन। तो व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कवेट इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी? ऑप्शन ए इज द ग्लास, ऑप्शन बी इज द प्लास्टिक, ऑप्शन सी इज द क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी इज द पॉलीस्टाइरीन। तो अभी देखो, दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो? पॉलीस्टाइरीन मतलब इसका तो कोई संबंध नहीं, पॉलीस्टाइरीन का फिल्म होता है जो आईआर से रिलेटेड है ना। प्लास्टिक थोड़ी यूज करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के सैम्पलिंग सेल में, दिखाएगा भी प्लास्टिक का सेल नहीं। तो बचा क्या है? ग्लास एंड क्वार्ट्ज, ग्लास एंड क्वार्ट्ज। ग्लास समटाइम्स एब्सॉर्ब यूवी रीजन, ग्लास sometimes absorb UV light. That's why this option will get cancelled. What is the correct answer then? Correct answer क्या रहेगा? Quartz. So what is the correct answer for this? Quartz. So in case of UV spectroscopy, कवेट्स are made from the quartz. याद रखना है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलो आईआर और यूवी के लिए भी ये क्वेश्चन सेम एप्लीकेबल है, राइट। देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 229। Which instrument component is responsible for separating different wavelength of infrared radiation in the IR spectroscopy? Which component of IR spectrophotometer is responsible for the separating the different wavelengths? IR का जो रीजन होता है उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे वैक्यूम IR, नियर IR, नियर IR, मिडल IR, फार IR, फिंगरप्रिंट रीजन। तो दिस काइंड ऑफ रेंजेस आर देयर, ठीक है। तो उसमें जो वेवलेंथ को सेपरेट करने वाला है, which instrument component is responsible for the separating different wavelength of infrared radiation in the IR spectroscopy? ऑप्शन देख लो पहले। ऑप्शन ए इज अ डिटेक्टर, ऑप्शन बी इज अ सोर्स, ऑप्शन सी इज अ सैंपल होल्डर, ऑप्शन डी इज अ मोनोक्रोमेटर। देखो अगर आपको इसके रिगार्डिंग मालूम भी नहीं है, स्टिल यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। कैसे? अब आपको ये तो मालूम है डिटेक्टर का काम क्या होता है। डिटेक्टर का नाम ही क्या है? डिटेक्टर। तो ये क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। तो इट विल गिव यू रिजल्ट। तो डिटेक्टर इज यूज्ड टू डिटेक्ट समथिंग, नॉट टू सेपरेट। डिटेक्टर इज यूज्ड टू डिटेक्ट समथिंग। सोर्स क्या है? सोर्स का एज पर द नेम इज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो ये रेडिएशन, आईआर रेडिएशन प्रोवाइड करेगा। तो ये सेपरेट थोड़ी करेगा, विल प्रोवाइड द रेडिएशन। सैंपल होल्डर, तो ये सैंपल होल्ड करने के लिए होगा। तो ये तीनों भी ऑप्शन गए ना आपके, ऑल दीज ऑप्शंस दे आर एलिमिनेटेड। सो मोनोक्रोमेटर, देखो एज द नेम इंडिकेट, मोनो मतलब क्या है? मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटर मतलब क्या है ना? क्रोमा मतलब क्या है? मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब क्या? कलर। एंड टॉर है ना, टॉर इज फॉर सेपरेटर, टॉर इज फॉर सेपरेटर। तो मोनोक्रोमेटर, मोनो मीन्स वन, सेपरेट वन कलर फ्रॉम द मल्टी कलर। मतलब एक वेवलेंथ बैंड है आपका, उसमें से एक वेवलेंथ चाहिए आपको, तो दैट इज रोल ऑफ मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर इज
responsible for the separating a different color, different wavelength in an infrared spectroscopy? So answer is nothing but the option D रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा आपका आंसर. So what is the monochromator? Role of monochromator is nothing but the to provide a specific wavelength amongst the light band. In a light band, in radiation, you have multiple wavelength light. So you require a particular wavelength light to filter that light, to give a specific wavelength of light. Monochromator is used. Even in UV also there is a monochromator. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन WHO गाइडलाइंस ऑफ हर्बल ड्रग कंटामिनेशन इंक्लूड्स. देखो 230 क्वेश्चन, ठीक है, 230 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 230 देखो पूछा है विच, है ना, इन WHO गाइडलाइंस. WHO मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इन WHO गाइडलाइंस फॉर हर्बल ड्रग्स कंटेमिनेशन इंक्लूड्स. हर्बल ड्रग्स में कंटेमिनेशन कौन से होते हैं? एज पर द WHO गाइडलाइंस फॉर द हर्बल ड्रग्स कंटेमिनेशंस इंक्लूड्स. देखो ऑप्शन ए दिया है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन बेसिस, ऑप्शन बी दिया है अमाइनो एसिड्स, ऑप्शन सी दिया है पेंटोजेस, एंड ऑप्शन डी दिया है पेस्टिसाइड रेसिड्यू, आर्सेनिक, हेवी मेटल्स एंड माइक्रोबियल लोड. तो WHO पैरामीटर फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसमें देयर इज वन क्लॉज नोन एज अ पेस्टिसाइड रेसिड्यू, हेवी मेटल्स एंड माइक्रोबियल लोड, है ना. प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स बेसिस ये क्या है? थोड़ी कंटेमिनेट है. अमाइनो एसिड थोड़ी कंटेमिनेट है. पेंटोजेस थोड़ी कंटेमिनेट है, राइट. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर? ऑप्शन डी. This is the correct answer. In the WHO guidelines for herbal drug contaminations include pesticidal residue, arsenic, heavy metals, microbial load. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो मैंने लेक्चर लिया था कॉस्मेटिक का, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी का आंसर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 231. देखो क्वेश्चन नंबर 231 देखो पूछा है सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द लिपस्टिक कैन बी डिटरमाइंड बाय. लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक इज अ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन, एंड टू चेक द क्वालिटी ऑफ दैट लिपस्टिक वी हैव क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट. वन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इज अ सॉफ्टनिंग पॉइंट इन द लिपस्टिक. लिपस्टिक में एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट. सॉफ्ट कब बनेगा? नाउ सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ लिपस्टिक कैन बी डिटरमाइंड बाय. चलो ऑप्शन देख लो. Option A is a ring and ball method. Option B is a breaking test method. Option C is a train test. Option D is a determination of peroxide value. तो एक एक ऑप्शन का एलिमिनेट कर देते हो. व्हाट इज द डिटरमिनेशन ऑफ peroxide वैल्यू? peroxide वैल्यू क्यों डिटरमाइन करना है? इट इज अ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर बेस. जो लिपिड ऑयल बेस होता है आपका, फैटी बेस, उसका ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है. टेन टेस्ट क्या है? इट इज अ कलर टेस्ट. यहाँ पे क्या पूछा है सॉफ्टनिंग पॉइंट, तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया. ब्रेकिंग टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट मतलब क्या है? ये तो डायरेक्टली ब्रेकिंग है, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट मतलब टूटने का टेस्ट है, तो ये नहीं है, राइट. यहाँ पे लिखा है सॉफ्टनिंग पॉइंट, बस सॉफ्ट होना चाहिए. तो रिंग एंड बॉल मेथड इज यूज्ड टू चेक द सॉफ्टनिंग टेस्ट. सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो रिमेंबर, ये ऑलरेडी मैंने उस लेक्चर में लिया था, मेरे पेड वाले जो बैच है उसमें, रिंग एंड बॉल मेथड. सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ लिपस्टिक कैन बी डिटरमाइंड बाय रिंग एंड बॉल मेथड. रिंग एंड बॉल मेथड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना. मैंने जिंदगी में बोला नहीं कभी ये लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. इसको करना है वो करे, नहीं करना है तो मत करे, कोई दिक्कत नहीं. चलो क्वेश्चन नंबर 232 है ना. हु कैन सबमिट द पेटेंट एप्लीकेशन? पेटेंट एप्लीकेशन कौन सबमिट कर सकता है भाई? कोई भी सबमिट कर सकता है. मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो, या
जैसे आजकल एजेंट रखने का रिवाज है, जीपैट क्लासेस में भी बहुत सारे एजेंट होते हैं कि प्रमोट करने के लिए। तो हु कैन सबमिट द पेटेंट एप्लीकेशन, ऑप्शन ए में दिया है ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर, डेफिनेटली कर सकता है भाई, जो इन्वेंटर है वो पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। असाइनी ऑफ इन्वेस्टर, ऑप्शन बी में दिया असाइनी ऑफ इन्वेस्टर, अगर आपका कोई चापलूस है तो आपका कोई एजेंट है ना, तो जो भी जिसको भी आपने काम असाइन किया है वो भी कर सकता है आपके लिए, यस डेफिनेटली कर सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इन्वेंटर, आपका कोई वकील है वो भी कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है भाई, ऑप्शन डी में दिया है ऑल ऑफ दिया हो। क्या रहेगा इसका आंसर? Obviously, who can submit the patent application? All of the above. True inventor or first inventor or assignee of inventor or legal representative of inventor can submit the patent application. So correct answer is all of the above. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, देखो क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ, ए पेटेंट क्या है? पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ, क्या है? फॉर्म ऑफ डैश डैश, पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ डैश डैश। ऑप्शन ए देखो टेंजिबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी देखो क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी दिखा है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी दिया है बोथ बी एंड सी। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ, वो फटाक से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को राइट कर देंगे और निकलेंगे आगे, तो ये आंसर हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? बिकॉज आपने पूरा पढ़ा नहीं ना। तो ए पेटेंट फॉर्म, पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, है ना। तो एक्चुअली इट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, करेक्ट है, बट आल्सो कैन बी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उसके लिए भी पेटेंट ले सकते हो आप। तो करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Right? So a patent is a form of both intellectual as well as industrial property. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ना। तो क्वेश्चन इज फ्रॉम योर रिसर्च मेथोडोलॉजी। एज आई टोल्ड यू दिस पेपर इज बिलोंग्स टू पेट एग्जाम, ये जो पेपर है पेट एग्जाम का पेपर है, ऑब्वियसली इसमें स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट है उसके क्वेश्चन तो आएंगे। तो आजकल आपके जीपैट में भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है वो। सो देखो पूछ क्या क्वेश्चन है, which statistical test is used to determine whether there is a significant difference between the means of two groups when the dependent variable is measured at a different points in a time. So statistical test which is used to determine whether there is a significant difference between the means of two groups, दो ग्रुप से आपके ने कुछ डाटा अपडेट किया है, उसका जो मीन्स है ना, वो मीन्स चेक किया आपने वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट, है ना। तो कौन सा टेस्ट है? which statistical test is used to determine whether there is a significant difference between means of two groups when dependent variable is measured one point of time, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट है, ऑप्शन सी दिया है मैन पिटने यू टेस्ट, ऑप्शन डी दिया है ची स्क्वायर टेस्ट। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है पेयर्ड टी टेस्ट, इसका जो आंसर है दैट इज अ पेयर्ड टी टेस्ट। एंड आई विल टीच दैट रिसर्च मेथोडोलॉजी इन माय कोर्स, आई विल एट दैट टाइम यू विल गेट टू नो पेयर्ड टी टेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है एंड लॉट ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 235, क्वेश्चन नंबर 235, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर एंड बाकी एग्जाम्स में भी चुका है। तो क्या पूछा है, पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ INH थेरेपी इन ट्यूबरक्लोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग।
मल्टीपल टाइम्स अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी। तो पेरिफेरल न्यूराइटिस मतलब क्या कि पेरिफेरल न्यूराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स बाय आयनेज थेरेपी। आयनेज मतलब क्या बोलते हैं आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड यूज्ड इन द ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो बेसिकली देखो पूछा है पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आयनेज थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जब ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए आइसोनियाजाइड यूज करते हैं, ऑडिबल, I hope I am audible. 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 Okay. So next question we'll see. So peripheral neuritis caused by ionized therapy in tuberculosis can be prevented by. Option A में दिया है विटामिन B1 with INH. Option B में दिया है विटामिन B2 with INH. Option C में दिया है विटामिन B6 with INH. Option D में दिया है विटामिन B12 with INH. देखो जो peripheral neuritis है that is the adverse effect of isoniazid. It is a drug used in the tuberculosis. Now that is prevented by using the vitamin B6. तो ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा है अलग अलग तरीके से। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। तो विटामिन B6 that is a pyridoxine is always given with the INH to prevent the that peripheral neuritis। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 236। क्वेश्चन नंबर 236 को पूछा है, क्या पूछा है? लोन लाइसन। क्या पूछा है? लोन लाइसन है ना। लोन लाइसन इज इशूड टू। देखो पूछा है लोन लाइसन किसको इशू किया जाता है? लोन लाइसन इज इशूड टू। लोन लाइसन इज इशूड टू। ऑप्शन ए में दिया है पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हु हैव देयर ओन अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। ऑप्शन बी में दिया है पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हु डू नॉट हैव देयर ओन अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। ऑप्शन सी में दिया है एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ऑप्शन डी में दिया है एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग पर्सन। देखो लोन लाइसन आपको ज़्यादा कुछ मालूम भी नहीं, फिर भी आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। कैसे? देखो लोन लाइसन मतलब क्या है ना, उधार लाइसन। उधार लाइसन किसको दे? उधार किसको चाहिए भाई? उधार किसको चाहिए? जिसके पास पैसे वो थोड़ी उधार लेगा आपसे। जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है पैसा हो, फैसिलिटी हो, जिसके पास नहीं है वो उधार लेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या दिया है? हु हैव देयर ओन। के पास है वो क्यों लेगा? तो नहीं लेगा ना। पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हु डज नॉट हैव, इसके पास नहीं है वो तो डेफिनेटली लेगा ना। ये तो ऑप्शन तो कुछ काम की नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर? ऑप्शन बी, द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन हु डू नॉट हैव their own arrangement for the manufacturing of drug. So for them loan license provision is there in a Drug and Cosmetic Act and उनको ही देते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अगेन ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। लोन लाइसन, और यहाँ पे और एक क्वेश्चन कवर करता हूँ। लोन लाइसन है ना, जो है ना, लोन लाइसन एक होता है और एक टर्म होता है रीपैकिंग लाइसन। रीपैकिंग लाइसन, रीपैकिंग लाइसन, लोन लाइसन, रीपैकिंग लाइसन। Repacking license is not repacking license, loan license, they are given for almost all type of drugs, but they are not given for schedule C and C1 drugs। C1 drugs जो है उसके लिए नहीं होता है। schedule C and C1 drug
द पैकिंग लाइसेंस इज नॉट इशूड फॉर CC1। याद रखो ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 237। क्वेश्चन नंबर 237। क्वेश्चन नंबर 237 देखो पूछा है, इन एमएज ऐसे द लिवर होमोजेनेट इज इंक्लूडेड इन द कल्चर मीडियम बिकॉज। क्वेश्चन क्या पूछा है, इन एमएज ऐसे, कौन सा ऐसे भाई, एमएज ऐसे। इन एमएज ऐसे लिवर होमोजेनेट इज इंक्लूडेड इन अ कल्चर मीडियम बिकॉज। तो जो एमएज ऐसे है उसमें लिवर होमोजेनेट इंक्लूड किया जाता है इन अ कल्चर मीडियम बिकॉज। क्यों करते हैं? तो पहले तो ये समझ लो एमएज ऐसे क्या होता है। एमएज ऐसे इज ऐसे टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ दैट कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। नॉन कार्सिनोजेनिक केमिकल्स है उसका ऐसे होता है, टू नो वेदर द केमिकल इज कार्सिनोजेनिक और नॉट, राइट। तो इसमें लीवर सेल्स यूज करते हैं रोडेंट्स के, रैट्स के, राइट। तो द ऐसे इज बेस्ड अपॉन दैट कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्सिनोजन to carcinogen. So okay, in AIIMS assay the liver homogenate is included in the culture medium because option A में क्या दिया है, it convert pro carcinogen into carcinogen, can option B liver can metabolize the histidine, option C दिया है salmonella mainly infect the liver, option D दिया है liver is susceptible for to cancer। ठीक है, तो ये लाइन तो करेक्ट है, ये तीनों लाइन करेक्ट है, तीनों भी लाइन क्या है, करेक्ट है। एंड इसमें एक बैक्टीरिया यूज करते हैं स्यूडोमोनास, नहीं सॉरी स्टेफिलोकोकस जीनस का एक बैक्टीरिया यूज करते हैं एंड इकोलाई भी यूज करते हैं इसमें। बट इन दिस ऐसे इट कन्वर्ट प्रो कार्सिनोजन इनटू कार्सिनोजन, convert pro carcinogen into, and that's why here the correct answer is option A। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आपको GPAT नाइपर DI फार्मासिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। 238 क्वेश्चन नंबर 238 देखो पूछा है, फिओक्रोमोसाइटोमा, फिओक्रोमोसाइटोमास आर द ट्यूमर्स ऑफ। ये फिओक्रोमोसाइटोमा इसका कैंसर है, आपका है, मेरा है, उसका है, इसका है, किसका है। फिओक्रोमोसाइटोमा इज अ ट्यूमर ऑफ, क्या पूछा है, फिओक्रोमोसाइटोमा इज अ ट्यूमर ऑफ। ऑप्शन ए में दिया है एड्रेनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी दिया है एड्रेनल मेडुला, ऑप्शन सी दिया है पैंक्रियास, ऑप्शन डी दिया है बोन्स। इसका ट्यूमर है भाई, तो फिओक्रोमोसाइटोमा इट इज अ, है ना, इज अ कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। फिओक्रोमोसाइटोमा इज अ, है ना, इट इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। फिओक्रोमोसाइटोमा इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड दैट्स व्हाई इसमें क्या है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से लेवल बढ़ जाता है बॉडी का, राइट। फिओक्रोमोसाइटोमा इज अ ट्यूमर ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 239, ट्यूबरक्युलर बैसिलाई ग्रोज बेस्ड इन, ट्यूबरक्युलर बैसिलाई ग्रोज बेस्ड इन। ट्यूबरक्युलर बैसिलाई कहाँ पे ग्रो होता है, ऑप्शन ए में दिया है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दिया है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी दिया है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। ट्यूबरक्युलर बैसिलाई क्या है, इज एसिड फास्ट बैसिलाई, एसिड फास्ट बैसिलाई एंड इट इज अ एरोबिक बैक्टीरिया। एसिड फास्ट तो है बट क्या है, एरोबिक है, सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन,
इज द ट्यूबरकुलोसिस, है ना। ट्यूबरकुलर बैसिलाई ग्रोज बेस्ट इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आंसर आपका रहेगा, इट ग्रोज बेस्ट ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 240 देखो, क्वेश्चन नंबर 240 again this question is from your research methodology. In a perfectly symmetrical distribution, how do the mean, median and mode compare? तो जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा होता है में मीन, मीडियन एंड मोड कंपेयर कैसे करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है ऑल दे आर इक्वल, ऑप्शन बी में दिया है मीन इज इक्वल टू मीडियन लेस देन मोड, ऑप्शन सी में दिया है मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, ऑप्शन डी में दिया है मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड, मीडियन इक्वल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following method is commonly used for the standardizing herbal extract? Which one of the following method commonly used for standardizing the herbal extract? कौन सा मेथड कॉमनली यूज किया जाता है टू स्टैंडर्डाइज द herbal extract? इंपॉर्टेंट है, देखो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजिंग हर्बल एक्सट्रैक्ट, ऑप्शन ए में दिया है टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी में दिया है रैंडम हार्वेस्टिंग, ऑप्शन सी में दिया है वैरिंग एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर, ऑप्शन डी में दिया है इनकंसिस्टेंट डिलेइंग टेक्निक्स, इनकंसिस्टेंट ड्राइंग टेक्निक्स, सॉरी। तो मोस्ट कॉमनली मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट, तो टीएलसी रैंडम हार्वेस्टिंग, varying extraction temperature, option D में inconsistent drying technique. So what is the answer over here? Obviously TLC. So the most commonly used standardizing herbal extract, the method for standardizing herbal extract, the thin layer chromatography. Question number 242. Question number 242. ECTD format dossier is widely used in, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डोजियर होता है ECTD फॉर्मेट, जो फॉर्मेट है ECTD फॉर्मेट डोजियर इज वाइडली यूज्ड इन, तो ऑप्शन ए है रेगुलेटरी मार्केट, ऑप्शन बी है नॉन रेगुलेटरी मार्केट, ऑप्शन सी है सेमी रेगुलेटरी, ऑप्शन डी है ना डोमेस्टिक मार्केट। चलो तो ये जो है ECTD फॉर्मेट का डोजियर जो होता है इसमें दो होता है, एक तो है ना दैट इज यूज्ड इन द रेगुलेटरी मार्केट ओनली, द USFDA MHRA, है ना, ये जो मार्केट्स होते हैं इसमें यूज किया जाता है, इज यूज्ड इन द रेगुलेटरी मार्केट। डोजियर मतलब क्या, इसमें ड्रग का API से लेके फॉर्मुलेशन की पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 240. What is the name of test that is used to detect? What is the name of test that is used to detect the presence of glycoside based on the liberation of hydrogen cyanide on hydrolysis? तो HCN रिलीज होगा, हाइड्रोलिसिस होगा ग्लाइकोसाइड का। What is the name of test that is used to detect the presence of glycoside based upon the liberation of hydrogen cyanide upon hydrolysis? तो जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है उसके लिए कौन सा टेस्ट है? सिंपली तो ऑप्शन ए में दिया है बायोरेट टेस्ट, ऑप्शन बी में दिया है लीगल टेस्ट, सी में दिया है बॉलजेट टेस्ट, डी में दिया है किलर किलाइन टेस्ट। सबसे पहले देखो बायोरेट टेस्ट इज टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन के लिए होता है। टू पेप्टाइड बॉन्ड्स they will give you biorate test, okay? And legal test, budget test, Keller Kilani test, all these tests are for glycoside। तीनों भी टेस्ट किसके है?
ग्लाइकोसाइड की है, बट आउट ऑफ दैट ये बालजेट टेस्ट जो होता है एंड केलर-किलाइन टेस्ट जो है दैट इज फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए होता है। लीगल टेस्ट इज फॉर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, ये किसके लिए? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में वही पूछा है which of है ना, what is the name of test used to detect the presence of glycoside based upon the liberation of hydrogen cyanide है ना upon hydrolysis. So legal test is the correct answer. यहाँ पे legal test क्या है? correct answer है legal test is the correct answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत बार पूछा है क्वेश्चन और अभी तक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 244, जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर सब में क्वेश्चन पूछता है, जीपैट में तो बहुत बार पूछा है। द बल्किंग एजेंट यूज्ड इन द पेरेंटल प्रिपरेशन इज, क्या पूछा है? बल्किंग एजेंट यूज्ड इन द पेरेंटल प्रिपरेशन इज। चलो ऑप्शन ए में दिया है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ऑप्शन बी में दिया है बेंजाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी में दिया है कार्बोलिक एसिड, ऑप्शन डी में दिया है सॉर्बिटॉल, और है ना। सो bulking agent used in the parenteral preparation, the agent by bulking agent, ऑप्शन ए सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये क्या है? ये तो एंटीऑक्सीडेंट है ना भाई, ये एंटीऑक्सीडेंट एजेंट हो जी। बेंजील अल्कोहल क्या है? इट इज अ प्रिजर्वेटिव और लोकल एनेस्थेटिक। कार्बोलिक एसिड इसका मालूम नहीं मुझे भी, बट सॉर्बिटॉल डेफिनेटली इज अ बल्किंग एजेंट इन द पेरेंटल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन राइट। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 245, 245, atropine used in atropine used before surgery, which of its effects? atropine is used before surgery, which of its effect? मतलब एट्रोपिन जो यूज करते हैं सर्जरी के पहले किसके लिए यूज करते हैं, क्यों करते हैं यूज? ऑप्शन ए रिड्यूस द सिक्रीशंस, ऑप्शन बी प्रिवेंट ब्रैडिकार्डिया, ऑप्शन सी प्रिवेंट हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो एट्रोपिन बेसिकली क्या है? इट इज अ मस्कर्निक एंटागोनिस्ट। एट्रोपिन इज अ मस्कर्निक एंटागोनिस्ट। मस्कर्निक एंटागोनिस्ट है तो एसिटिलकोलिन क्या करता है? ब्रैडिकार्डिया। तो मस्कर्निक एंटागोनिस्ट क्या करेगा? टैकिकार्डिया, टू प्रिवेंट द ब्रैडिकार्डिया। देन to prevent the hypotension, again acetylcholine will cause hypotension, atropine will cause prevent that, so to prevent the hypotension, and obviously as it is a muscarinic blocker, it will reduce the all secretion before the surgery, to reduce the secretion. What is the correct answer over here? Correct answer is nothing but the all of the above. and atropine का यूज क्या है? to reduce the secretion, to prevent the bradycardia, to prevent the hypotension before surgery. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following microorganism is most dangerous to the eye? तो कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म आई के लिए, आईज के लिए डेंजरस है? क्वेश्चन नंबर 246, which of the following microorganism is most dangerous to the eye? ऑप्शन ए दिया है प्रोटियस वल्गैरिस, ऑप्शन ए दिया है प्रोटियस वल्गैरिस, ऑप्शन बी दिया है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन सी दिया है स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, ऑप्शन डी दिया है बैसिलस सबस्टाइलिस। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक आई इन्फेक्शन करने वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन है? तो इट इज़ नथिंग बट द स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। स्यूडोमोनास एरोजिनोसा इज मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म फॉर आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जीपैट नाइपर DI फार्मासिस्ट में आया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 247, देखो NDA स्टैंड्स फॉर, NDA मतलब ये पार्टी नहीं है, ये क्या है? NDA मतलब क्या? नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या? नहीं, ये क्या है? न्यू, एन मतलब न्यू, ये क्या है? डी ड्रग एंड ए फॉर एप्लीकेशन, न्यू ड्रग एप्लीकेशन।
देखो न्यू ड्रग एप्लीकेशन कहाँ पे, यहाँ पे. व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर? न्यू ड्रग एप्लीकेशन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. NDA, not a novel drug application, not a non-disclosure agreement, not a new disclosure agreement. So NDA stand for new drug application. You want to formulate, you have done research. अगर आपने नया कुछ ड्रग को रिसर्च किया है, उसको पेटेंट के लिए आपको NDA फाइल करना पड़ता है. न्यू ड्रग एप्लीकेशन पे तो सब डाटा सबमिट करना पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल्स का. clinical data, preclinical data you have to submit. Question number 248 देखो, question number 248. What is the chemical basis of reaction between alkaloids and drag and drop reagent? तो है ना, अल्कोलॉइड्स के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन. टू आइडेंटिफाई द अल्कोलॉइड्स यू हैव मेयर्स टेस्ट, you have drag and drop reagent, you have Wagner reagent, you have Hager's reagent, you have sodium ranitidine test, you have tannic acid test. There are 7 tests which are used to identify the alkaloids. उसमें एक ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट है. इसमें क्या होता है ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट में? पोटेशियम bismuth iodide. Reagent of this drag and drop test is nothing but the potassium bismuth iodide. Potassium bismuth iodide is the reagent for this test, and ये जो है potassium bismuth iodide, it will react with the alkaloid to give colored precipitate, orange colored precipitate. तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए में दिया है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन. आयोडीन तो है नहीं इसमें. फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन. बी में दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कलॉइड टू फॉर्म अ कलर्ड प्रोडक्ट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट विद अल्कलॉइड. रिडक्शन ऑफ अल्कलॉइड टू फॉर्म अ कलर्ड प्रोडक्ट. यहाँ पे formation of colored complex, formation of colored product of alkaloid. B is the correct answer. तो क्वेश्चन नंबर 249 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल. जो लिवर सिरोसिस हो रहा है, लिवर हेपेटाइटिस हो रहा है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन भी है. The following laxative lowers the blood ammonia level in the hepatic encephalopathy. देखो पूछा है following laxative lowers the blood ammonia level in the hepatic encephalopathy. hepatic encephalopathy में blood ammonia level कम करने वाला laxative कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है बिसाकोडिल. कौन सा कोडिल? बिसाकोडिल. ऑप्शन बी में दिया है लिक्विड पैराफिन. ऑप्शन सी में दिया है लैक्टोलोज. ऑप्शन डी में दिया है मैग्नीशियम सल्फेट. देखो हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी में तक लीवर खराब हो गया. लीवर का काम है ना लेस देन 25% है. 25% से कम है लीवर का काम चालू. बाकी लीवर खराब हो चुका है. लीवर खराब हो चुका है तो मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ. मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, और जो नाइट्रोजन है वो फिक्स नहीं हुआ, तो ब्लड में अमोनिया बढ़ जाता है. ब्लड में क्या है? अमोनिया बढ़ जाता है. A laxative which lowers the ammonia in the hepatic encephalopathy. ऑप्शन ए बिसाकोडिल, ऑप्शन बी लिक्विड पैराफिन, ऑप्शन सी लैक्टोलोज, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट. तो इसमें का जो लैक्टोलोज है, लैक्टोलोज दिस इज अ डाइसैकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज. डाइसैकेराइड ऑफ फ्रुक्टोज which is a non absorbable in the GIT. तो क्या होता है? ये लैक्टोलोज GIT में जाके जो GIT के बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द GIT will break down the lactulose and convert into organic acid, say lactic acid. Bacteria will convert lactulose into organic acid, that like a lactic acid in the GIT.
So which will counteract the ammonia, and prevent the increase in the ammonia in the blood, actually it is a साइड एक्टिविटी. लैक्टोलोज का काम है, लैक्टोलोज का काम क्या है, लैक्सेटिव, बट as it decreases the ammonia level, so it is used in the hepatic encephalopathy nowadays. ये बहुत चल रहा है आजकल. इसका एक ब्रांड नेम बोलता हूँ आपको, इसका डुफालेक का, लैक्टोलोज का एक ब्रांड नेम है डुफालेक, जो अबॉट फार्मास्यूटिकल का आता है. क्वेश्चन नंबर 250 देखो, क्वेश्चन नंबर 250. One of the following agent is incorporated in the toothpaste for the treatment of hypersensitivity. ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा है ना, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मा. मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा है, मल्टीपल टाइम, कि टू रिड्यूस द हाइपर सेंसिटिविटी. आजकल जो चल रहा है ना आपके एडवर्टाइजमेंट, कौन सा, सेंसोडाइन टूथपेस्ट, that is used to reduce the hypersensitivity of teeth. उसमें एक desensitizing agent होता है. What is the name of that desensitizing agent? So one of the following agent is incorporated in the toothpaste for the treatment of hypersensitivity. Option A में दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन B is a कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन C is a स्ट्रोमियम क्लोराइड, ऑप्शन D तो सोडियम लाउरिल सैक्रोसिनेट. तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में बोलो मुझे, है ना. सो वन desensitizing agent which is used to reduce the sensitivity of your teeth, and that is nothing but the chromium chloride. ये करेक्ट आंसर है आपका. इसके ऊपर एक 4-5 बार क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है, राइट. जीपैट, नाइपर, DI फार्मासिस्ट, अलग अलग एग्जाम में. चलो नेक्स्ट question is a Crohn's disease. Crohn's disease affect the dash part. Crohn's disease affect the dash part. तो Crohn's disease होता है, it is a tumor of GIT. Is a tumor of GIT. इसका आंसर ये नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 252. Which regulatory guidelines outlines the principle and requirements of safety pharmacological study? देखो पूछा है which regulatory guidelines outline the principle and requirement for safety. तो ये वर्ड अंडरलाइन करो, सेफ्टी. ऑप्शन ए में दिया है ICH ES7A, ऑप्शन बी ICHE14, ऑप्शन सी में दिया है ICHQ3C, ऑप्शन डी में दिया है ICHM3. देखो ICH के जो गाइडलाइंस होते हैं वो दैट इज अ सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी गाइडलाइंस जो होते हैं, है ना. क्वालिटी गाइडलाइंस, सेफ्टी गाइडलाइंस, एफिकेसी गाइडलाइंस, और एक ये भी होता है गाइडलाइन का लॉन्ग फॉर्म अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी. तो E फॉर एफिकेसी, Q फॉर क्वालिटी एंड S फॉर सेफ्टी. तो ये एक सिंगल वर्ड से आपको आंसर आ जाएगा. सेफ्टी गाइडलाइंस कौन सा है फिर, ये ICH7A. सो दैट इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 253. Clavulanic acid is a combination. Clavulanic acid is combined with the amoxicillin because. तो clavulanic acid amoxicillin क्या है, तो amoxicillin is a penicillin. ये क्या है, पेनिसिलिन होता है, एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिन होता है, एसिड रेजिस्टेंट. Clavulanic acid is combined with the amoxicillin because. ऑप्शन ए में दिया है it kills the bacteria that are not killed by amoxicillin. ऑप्शन ए में क्या दिया है, it kills the bacteria that are not killed by amoxicillin. मतलब clavulanic acid kills the bacteria that are not killed by amoxicillin.
ऑप्शन बी दिया है इट रिटार्ड द रिनल एब्सॉर्प्शन रिनल एक्सक्रीशन ऑफ एमोक्सिलिन। तो ऑप्शन बी में क्या दिया है कि एमोक्सिसिलिन का रिनल एक्सक्रीशन रिटार्ड करता है और उसका बायो अवेलेबिलिटी बढ़ता है, ऐसा दिया है। ऑप्शन सी में क्या है दिया है इट काउंटरैक्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एमोक्सिलिन। ऑप्शन सी में दिया है कि क्लेवोलिनिक एसिड काउंटरैक्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एमोक्सिलिन। डी में दिया है इट इनहिबिट द बीटा लैक्टामेज दैट डिस्ट्रॉय द एमोक्सिलिन। क्लेवोलिनिक एसिड क्या है, इट इज अ बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर होता है। क्लेवोलिनिक एसिड इज अ बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर क्यों, क्योंकि एमोक्सिलिन एंड अदर पेनिसिलिन्स they are destroyed by beta lactamase, and to prevent that clavulanic acid is combined with the amoxicillin. It is a kind of synergistic effect. Right? So it inhibits the beta lactamase that destroy the amoxicillin. That's why amoxicillin is clavulanic acid, they are combined together, है ना। क्लेवम नाम का टैबलेट आता है ना, अगुमेंटिन नाम का टैबलेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यस डी करेक्ट है आपका आंसर, जानवी जोशी एंड डी इज द करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 254, द पेटेंट एप्लीकेशन कंटेन, द पेटेंट एप्लीकेशन कंटेन, पेटेंट एप्लीकेशन कंटेन, पेटेंट एप्लीकेशन कंटेन। ऑप्शन ए में दिया है फॉर्म नंबर फॉर्म 1, ऑप्शन बी फॉर्म 2, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो देखो पेटेंट एप्लीकेशन जो होता है उसमें फॉर्म नंबर 1 एक होता है और फॉर्म नंबर 2 एक होता है। तो इन द पेटेंट एप्लीकेशन देयर आर फॉर्म नंबर 1 एज वेल एज फॉर्म नंबर 2। व्हाट इज फॉर्म नंबर 1? फॉर्म नंबर 1 इज नथिंग बट द एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट। फॉर्म नंबर 1 क्या होता है? इट इज द एप्लीकेशन to grant a patent, application for patent granting। form number 2 क्या होता है? it is nothing but the detailed about your product, you can see dossier of your product, detailed about your drug and all that details। so option A and B both, correct answer is option A and B both। क्वेश्चन नंबर 255 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आ सकता है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्यूरिन डेरिवेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्यूरिन डेरिवेटिव। which one is not a purine derivative, right? So which of the following is not a purine derivative? ऑप्शन ए दिया है एडेनिन, ऑप्शन बी दिया है ग्वानिन, ऑप्शन सी दिया है साइटोसिन, ऑप्शन डी दिया है जेंथिन। ठीक है, तो प्यूरिन कौन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्यूरिन डेरिवेटिव? which of the following is not a derivative, which of the following is not a purine derivative? so adenine, guanine, cytosine and xanthine। तो adenine guanine क्या है? they are the purine derivative। adenine guanine क्या है? प्यूरिन से। adenine guanine क्या है? प्यूरिन से। cytosine and thymine, cytosine and thymine, cytosine, they are the pyrimidines derivative। ये क्या है? pyrimidine से। cytosine क्या है? pyrimidine है। xanthine क्या है? xanthine is a base for all this, xanthine is a base, purine base, xanthine is a purine base। तो क्वेश्चन क्या था? which of the following is not a purine derivative? what is the correct answer then? ने बोला है adenine, guanine, they are the purines present in the DNA, RNA में होता है, बट साइटोसिन क्या है? pyrimidine है। what is the correct answer then? cytosine is the correct answer, option C is the correct answer। cytosine is not a purine।
Now question number 256, last question. Question number 256, last question of this paper. Floating drug delivery system targets dash organ in the body. Floating drug delivery system targets dash organ in the body. Option A stomach, option B spleen, option C intestine, option D liver. आप मुझे इसका आंसर बोलो कमेंट बॉक्स में फटाफट. ओके, फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बोलो मुझे. राइट, आंसर. You can order this magic bullet for GPAT Niper DI Pharmacist. Read 2-3 times before exam and qualify 100%. The first book is a Fundamentals of GPAT Niper DI Pharmacist. Second one is GPAT Guru. Read these two books and qualify 100% GPAT Niper DI Pharmacist exam. Okay? You can also join my online course for GPAT Niper. GPAT Niper DI Pharmacist online course. So in that you will have live lectures, recorded lectures, study material, test series, and my mentorship 24/7. And the fees for this is nothing but only 5,000 rupees, valid for lifetime. तो 5,000 रुपीज़ में पूरा GPAT नाइपर DI फार्मासिस्ट का कोर्स कर लो. स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, सिर्फ 5,000 रुपीज़ में. चलो आते हैं अभी क्वेश्चन के ऊपर. तो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम टारगेट्स टू डैश ऑर्गन ऑफ बॉडी. फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम किसको टारगेट करता है? जानवी जोशी, यू आर करेक्ट. स्टमक. आंसर इज अ स्प्लीन. में कहाँ फ्लोट करेगा? स्प्लीन में क्या है? कुछ जूस थोड़ी होता है. इंटेस्टाइन में जूस होता है, लिवर में नहीं होता है. तो फ्लोट कहाँ पे करेगा? कोई समथिंग हैज टू फ्लोट इन अ स्पेस. सो वेयर इज द स्पेस? ओनली इन अ स्टमक. सो फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज रिलेटेड विद द स्टमक. स्टमक में टू एक्ट लॉन्ग टाइम इन द स्टमक, दैट इज अ फ्लोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम. सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. सो 256 क्वेश्चन वाज देयर इन दिस पेपर. ये जो पेपर है आपका, इसको बोलते हैं पेट एग्जाम पेपर. पेट का पेपर था नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का. दिस पेपर वाज फ्रॉम कवेतरी बैनवाई चौधरी, नॉर्थ महाराष्ट्र. एंड दिस पेपर वाज फॉर PhD कोर्स वर्क. पेपर वाज अ प्री PhD एंट्रांस, मतलब पेट का पेपर था. एंड 253 questions was there in this, which all questions of these are very very important for GPAT Niper DI Pharmacy. तो इसके ऊपर 18 लेक्चर हुए है ना, 18 लेक्चर्स. Those who have not seen the previous lectures, please go in the playlist and watch all these lectures. इसके ऊपर 18 लेक्चर हो चुके हैं अपने. दिस वाज द लास्ट लेक्चर. पूरे लेक्चर्स देख लो, पूरे क्वेश्चंस देख लो. इंपॉर्टेंट है GPAT Niper DI Pharmacist के लिए. यस, निशिकांत शिवा करेक्ट है. हाय सर, आप अभी एग्जाम ये पेपर खत्म होने के बाद आए, तो ये पूरा हो गया आपका. चलो राइट. तो इसके बाद में दूसरा कुछ पेपर देखेंगे या फिर GPAT के प्रीवियस के पेपर्स डिस्कस कर लेंगे जैसे जो चल रहा है वैसे. राइट. तो 256 क्वेश्चन वाज देयर इन दिस पेपर और वो सभी हो चुके हैं. 18 लेक्चर हो चुके हैं इसके ऊपर. जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो. 18 parts are there. Okay, so see you in the next lecture. This is finished and I'm signing out. 7 बजे मेरा दूसरा लेक्चर है.